Hello student, I am Professor Nancy Kansaba and we are studying the subject Database Management System. In previous session, we study about what is database and what kind of the data we required and how we can derive the whole database management system and how database works. So, to support our three-tier architecture in DBMS, we need three level of the database, and to support that we need DBA. DBA stands for database administrative, and जो हम database create करते हैं उसको handle करने के लिए we are using this DBA. Like in our college we have the admin department जो हमारा पूरा process follow करता है और उसको handle करता है, right? Similarly in database there is a DBA कि जो आपके database के storage structure में अगर कुछ changes होता है तो वो changes DBA के through होता है और उसकी वजह से जो यूजर का जो व्यू होता है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता. लाइक एन एग्जांपल, इफ वी आर यूजिंग फेसबुक राइट नाउ, सो फेसबुक जो आप एक्सेस कर रहे हो एट अ सिमिलर टाइम पे कहीं पे डेटाबेस में कोई चेंजेस हो रहा है इन बैकग्राउंड प्रोसेस, तो हमारा जो यूजर व्यू है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आता और वो जो एज इट इज है हम उसको यूज करते जाते हैं, राइट? DBA stands for that, and we already seen कि data architecture of database. After that, there is a concept of mapping in DBMS. So mapping is a process of transforming request and the result between three level is called mapping. कि जो हम एक जगह से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं एंड जो उसका रिस्पॉन्स आता है उसके बीच में जो प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज एन मैपिंग. There are two type of the mapping. First one is conceptual or an internal mapping, and second one external or an conceptual mapping. So here is the diagram of the three level architecture of mapping. जिसका बेसिक लेयर है फिजिकल लेवल और एन इंटरनल स्कीमा, सेकेंड लेयर है कंसेप्चुअल लेवल और एन कंसेप्चुअल स्कीमा, एंड थर्ड लेवल है एक्सटर्नल लेवल और एन एक्सटर्नल स्कीमा. तो इसमें जो मैपिंग होगी इट इज बिटवीन द टू लेयर्स. फर्स्ट मैपिंग जो होगा वो होगा कंसेप्चुअल एंड इंटरनल मैपिंग, जो होगा आपके फिजिकल लेवल एंड कंसेप्चुअल लेवल के बीच में. एंड सेकेंड टाइप है जो है एक्सटर्नल एंड कंसेप्चुअल मैपिंग, जो आपके कंसेप्चुअल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल के बीच में होता है. एंड हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो इन तीन लेवल के बीच में होता है और उसमें हम ये दो टाइप की मैपिंग कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज कंसेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग. अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा कंसेप्चुअल स्कीमा है वो हमारे इंटरनल स्कीमा के साथ रिलेटेड होगा, एंड टू हैंडल दैट थिंग्स, to handle the conceptual schema in our database we can relate with the internal schema. And conceptual records जो होंगे और उनके जो फील्ड होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनल लेवल का हम यूज कर सकते हैं. So main benefit of the conceptual or internal schema is that if the structure of the stored database is changed, then conceptual or internal mapping must be changed accordingly, and conceptual schema can be remain invariant. कि अगर हम हमारे इंटरनल लेवल पे अगर कोई चेंज करता है तो वो रिफ्लेक्ट होगा हमारे कंसेप्चुअल लेवल पे, एंड उन दोनों के बीच में जब हम मैपिंग करेंगे सो जो मैपिंग हो रही है उसके थ्रू अगर हमारे डेटाबेस में कोई चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे स्कीमा में भी वहाँ पे चेंज होगा और हमारा जो स्कीमा है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा. About conceptual and internal mapping. Second one is external or an conceptual mapping. So it relates each external schema with the conceptual schema. जैसे previously था similarly यहाँ पे भी है कि आपके external schema and conceptual schema के बीच में connection है, उसके लिए हम इस mapping का use करते हैं. With this mapping technique हम हमारा particular external view and conceptual schema को correlate कर पाएंगे और उसका use कर पाएंगे. So previously था similarly it is over here कि if the structure of the conceptual schema is changed then the external or conceptual mapping must be changed accordingly, and changed accordingly and external schema can be remain invariant. So दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द मैपिंग जो हमारे तीन लेयर के बीच में होती है. उसके बाद डेटा इंडिपेंडेंस. वी प्रीवियसली टॉक अबाउट द
डेटा अबाउट डेटा विच इज नोन एज एन मेटा डेटा, कि हमारे पास अगर कोई एक स्टूडेंट टेबल है तो टेबल इज अ डेटा। अभी उसमें जो कॉलम्स होंगे कि स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस एंड एड्रेस, so that is the data about data, so that is known as a metadata. And to handle that data additional information to the user, we can be rely on the data independence. अभी डेटा इंडिपेंडेंस की वजह से आप जो भी मॉडिफाई करोगे, जो भी अपडेट करोगे आपके मेटा डेटा में, वो कहीं ना कहीं जाके आपके डेटाबेस में स्टोर होता है एंड विद दैट हमारा डेटाबेस एक्सपांड होता है। सो देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स और टेक्निक्स जिसको यूजर्स को फुलफिल करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा डेटाबेस है उसको हैंडल करना दैट इज बिकम ए लिटिल बिट टीडियस एंड हाईली कॉम्प्लेक्स जॉब। तो उस टाइम पे डेटा इंडिपेंडेंस का यूज होता है। तो डेटा इंडिपेंडेंस के यूज करने से पहले लेट्स सी कि तीन टाइप के जो लेवल्स है उसके, ठीक है। डेटा इंडिपेंडेंस अगर कोई हम यूज करने वाला है तो उसके बेसिक तीन टाइप है, फिजिकल और एन इंटरनल, कंसेप्चुअल एंड एक्सटर्नल। ये तीन लेयर में वर्क करता है। तो हमने प्रीवियसली भी देखा कि हमारा डेटाबेस आर्किटेक्चर है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। यूजर व्यू एंड डेटाबेस के बीच में ये तीनों लेयर वर्क करेंगे। तो व्हाट इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस? फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज नथिंग बट कि वो आपको हेल्प करेगा आपके कंसेप्चुअल लेवल से आपके इंटरनल और फिजिकल लेवल का जो डेटा है उसको सेपरेट करने में ये हेल्प करता है। साथ साथ ही ये आपको कुछ लॉजिकल डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करता है जो आपके डेटाबेस में कोई इफेक्ट किए बिना आपके फिजिकल स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन करने को ये अलाउ करता है। सो कंपेयर टू अ लॉजिकल इंडिपेंडेंस इट इज एन इजी टू अचीव द फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, राइट। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को हम इजीली चेंज करके हमारे फिजिकल स्टोरेज में कोई अफेक्ट किए बिना हम हमारा कंसेप्चुअल स्कीमा का भी यूज कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ जो मैपिंग प्रोसेस है वो भी इसके साथ कोरिलेट कर सकता है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस जो अचीव होगा by the presence of the internal level of the database and the transformation from the conceptual level of the database to the internal level. So physical data independence को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। अभी जो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस यूज करेंगे तो देयर आर सम एग्जांपल्स कि जिसके अंदर हम फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का यूज करते हैं बट with the use of हमारा जो conceptual layer है वहाँ पे कोई effect नहीं आता। So what kind of examples are there? So first one is कि using a new storage device like hard drive or a magnetic tape, हम नए storage devices का use कर सकते हैं। Then modifying file organization techniques जो available है उनका use कर सकते हैं। Switching to a different data structures, so data structures में there are multiple algorithms and techniques कि जिसको हम DBMS में सपोर्ट करवाता है, या आप जो कोई प्रोग्राम लिखते हो वहाँ पे वो टेक्निक का यूज कर रहे हो, so we can also switch to a different data structure techniques. Then changing the access method, फिर modifying indexes, as previously I said कि जो आप डेटाबेस क्रिएट करते हो कहीं ना कहीं जाके आपकी मेमोरी में स्टोर होता है। So to store that thing we need some hashing techniques or an indexing, so उसको मॉडिफिकेशन भी हम फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस लेयर पे कर सकते हैं। आफ्टर दैट changes to compromise the technique or the hashing algorithms, कि हम डेटाबेस को सही से यूटिलाइज करने के लिए we can use some techniques and we can also use some hashing algorithms. So with the physical data independence layer it is easier to change to this techniques and the hashing algorithms. And the last one is कि suppose you want to move your database from C drive to D drive, means you want to change the location of your database. So with the physical data independence हम easily perform कर पाएंगे। After that we have the logical data independence. So logical data independence उसके पास abilities है कि वो आपके conceptual schema में affect के बिना कुछ changes कर पाए, like कि उसका जो external view है, उसका जो एक्सटर्नल API है, या तो उसके प्रोग्राम्स है कि हम कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं, राइट, कि .NET यूज कर रहे हैं, जावा यूज कर रहे हैं, सी यूज कर रहे हैं, अदर एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप वो यूज कर रहे हो तो
उसकी कनेक्टिविटी बैकएंड में हम डेटाबेस के साथ करते हैं टू यूज दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन और एन वेबसाइट। सो उस टाइम पे एक्सटर्नल व्यू पे और उनके प्रोग्राम्स पे कोई इफेक्ट ना है, उसके लिए हम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस पे रिलाई कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो see that any changes made will be absorbed by the mapping between external and conceptual level, right? So अगर हम इसको physical data independence level के साथ compare करें, so it is quite challenging to achieve the logical data independence. तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के साथ कौन से एग्जांपल्स हैं कि जिसको हम यूज कर सकते हैं इन आवर एक्सटर्नल लेयर। सो फर्स्ट वन इज कि वी कैन ऐड, मॉडिफाई, डिलीट और अ न्यू एट्रीब्यूट or an entity or a relationship is possible without the rewrite the existing application program। कि सपोज हमने कोई प्रोग्राम लिखा है जिसको हमने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी दिया हुआ है एंड उस पर्टिकुलर डेटाबेस में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ डिलीट कर रहे हैं या either with their attribute, entity and relationship, so we don't need to write that whole program again, rewrite that program। instead of that we can easily go with the flow and हमारा जो भी एप्लीकेशन है या जो भी प्रोग्राम है उसको इजीली टैकल कर पाएंगे। सेकंड थिंग इज मर्जिंग टू record into one। so I in previous lecture I given the example of the बैंक कि बैंक में कोई ऐसा कस्टमर है जिनका नेम, एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस सेम है बट उनकी कॉन्टेक्ट की जो डिटेल्स है वो दोनों डिफरेंट है कि दोनों फाइल में अलग अलग कॉन्टेक्ट नंबर है एंड नाउ वी वांट टू मर्ज दैट रिकॉर्ड। सो विद द हेल्प ऑफ द लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस वो हम इजीली कर पाएंगे। एंड ऑपोजिट ऑफ दैट कि अगर वो एक ही फाइल में होगा उसको हमें अलग करना होगा कि ब्रेकिंग एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इनटू 2 और मोर रिकॉर्ड्स। सो विद द लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हम वो भी इजीली कर पाएंगे। there is a difference between physical and logical data independence कि logical data independence mainly concern करता है आपके स्ट्रक्चर के साथ और चेंज ऑफ द डेटा डेफिनेशन की जो डेटा डेफिनेशन है उसकी चेंजिंग या तो स्ट्रक्चर पे वो फोकस करता है। while in physical data independence it is concerned with the storage of the data। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में आपका जो भी डेटा है उसको अगर रिट्राइव करना है उस डेटा को तो मेनली आपके लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा पे डिपेंडेंट होता है कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को आप इजीली रिट्राइव कर सकते हो। Then compared to a logical data independence, it is difficult to achieve the logical data independence. While compared to a logical independence, it is easy to achieve the physical data independence। बेसिकली हम कह सकते हैं कि अगर लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस यूज कर रहे हो तो उसके साथ हमारा कंसेप्चुअल स्कीमा कंसर्न करता है। उसके साथ साथ अगर आप कोई एप्लीकेशन या प्रोग्राम में कोई नया फील्ड ऐड कर रहे हो तो उसको इजीली डिलीट करना और ऐड करना काफ़ी आसान हो जाता है विद द लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। एंड उसके बेस्ट एग्जांपल है कि आपका जो डेटाबेस है या आपका जो एट्रीब्यूट है आप उसमें ऐड, मॉडिफाई एंड डिलीट इजीली कर सकते हो। पर इन फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस वो आपके इंटरनल स्कीमा के साथ जुड़ा हुआ होता है एंड उसमें यूजुअली आपकी जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होती है वहाँ पे वो इजीली चेंज करने नहीं देता है। तो आप कह सकते हो कि जो आपको चेंजेस करने हैं वो आप कहाँ पे कर सकते हो कि जो भी आप टेक्निक यूज करने वाले हो, जो भी हैशिंग एल्गोरिथम्स यूज करने वाले हो, जो भी स्टोरेज डिवाइसेस यूज करने वाले हो, आप वहाँ पे चेंज करके आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन physical and logical data independence। And after that we have the four type of the definition languages। okay, we already study about this definition languages in the previous lecture कि data definition language है, data manipulation language है, data control language है and transaction control language है। and चारों के अपने अपने अलग वर्किंग है कि DDL है तो आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, ट्रंकेट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। DML का यूज कर रहे हो तो सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट का यूज कर सकते हो वहाँ पे। while you are going to work in a live project on backend side with the use of the DBMS, तो उस टाइम पे आपका मेनली फोकस आपके सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट पे रहता है।
देन है DCL, सो रिवोक एंड ग्रांट अगर करवाना है सो विद DCL हम उसको इजीली करवा सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज कि ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. सो अगर आपको रोल बैक करवाना है या कमिट करवाना है, कमिट इज नथिंग बट एन इट वर्क लाइक एन सेव, कि जैसे आप अभी कोई फाइल क्रिएट करते हो तो कंट्रोल ए करते हो तो जिसकी वजह से फाइल सेव हो जाता है. सेम थिंग कमिट की वजह से होता है कि अगर आप कोई क्वेरी परफॉर्म कर रहे हो तो आप इजीली वहां से उसको सेव कर सकते हो विद द कमिट कमांड. सो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर कि आपका DBMS क्या है और इसके जो बेसिक क्वेरीज है वो क्या है, उसका 3 टायर आर्किटेक्चर क्या है, लॉजिकल एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है. नाउ आफ्टर दैट वी हैव दिस चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज डेटा मॉडल्स. तो डेटा मॉडल जो वर्क करता है उसमें मेनली 4 टाइप के डेटा मॉडल्स हैं. रिलेशनल डेटा मॉडल, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल, object oriented data model. Okay, so let's see. First one is which is an entity relationship model. Entity relationship model or a ER model or a ER diagram is nothing but it is the structure of the database. It is a structure of the database with the help of a diagram. और in a easy manner I'll say that it is a blueprint of your database. कि आप जो भी database बनाने वाले हो उसमें जो भी tables create करने वाले हो उसका आपके पास एक blueprint होता है which is known as an ER diagram. जैसे जब आप कोई आर्किटेक्चर खड़ा करते हो या घर खड़ा करते हो उस टाइम पे पहले हम क्या करते हैं, उसकी डिजाइनिंग करते हैं, उसका ब्लूप्रिंट बनाता है, राइट. सो सेम थिंग हैपेंड विद द डेटाबेस in DBMS and that process is known as an ER diagram, ER model or an entity relationship model. अभी ER diagram के दो main concept है, one is entity set and second one is relationship set. So what is an entity relationship diagram? So entity relationship diagram shows the relationship among the entity sets, and entity sets is a group of similar entities and these entities can have an attribute. In terms of the DBMS, an entity is a table or an attribute of a table in database. So, showing the relationship among tables and their attributes, ER diagram shows the complete logical structure of a database. So, हम बेसिकली बोल सकते हैं कि हम जो टेबल क्रिएट करते हैं उसमें जो एंटिटी सेट्स होता है वो एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स होता है. सो व्हाट इज एंटिटी, व्हाट इज एट्रीब्यूट, व्हाट इज रिलेशनशिप, विल सी फर्दर कि इंडिविजुअली ये कैसे वर्क करता है, व्हाट इज स्टैंड्स फॉर व्हाट. तो बेसिकली आपका जो टेबल होगा उसमें जो एंटिटीज होंगे उनके जो एट्रीब्यूट होंगे या इधर आपकी एंटिटी का एट्रीब्यूट के साथ या तो एट्रीब्यूट का एट्रीब्यूट के साथ उनका जो रिलेशनशिप शो किया गया होगा आपके डेटाबेस में, उसको अगर आप ग्राफिकल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हो, सो दैट इज नोन एज एन ER डायग्राम. So why we use this ER diagram? So if we are using ER diagram, so ER modeling की वजह से आपका जो डेटा एनालाइजेशन है वो काफी इजी हो जाएगा एंड आप एक सिस्टमेटिकली फ्लो में उसको डिजाइन कर पाओगे आपके डेटाबेस को, आपका वर्क बहुत कम हो जाएगा. एंड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो रिप्रेजेंट करता है कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज का रिलेशनशिप उनके बीच में. So this is the best practice to complete the ER modeling before implementing your database. अगर if you are going to implement a database, so at that time अगर आप ER modeling follow करते हो, so that would be very helpful. So what kind of the benefit you will have and example of the ER diagram. So यहाँ पे एक छोटा सा example लिया गया है यूनिवर्सिटी का कि दो एंटिटी है, स्टूडेंट है एंड कॉलेज है. अभी स्टूडेंट एंटिटी के 3 एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एड्रेस. एंड सिमिलरली कॉलेज एंटिटी के 2 एट्रीब्यूट है, कॉलेज आईडी एंड कॉलेज नेम एंड उनके बीच में स्टडी इन करके रिलेशनशिप दिखाया गया है. सो नाउ विल थिंक अबाउट दिस कि ये डिफरेंट सिंबल्स क्या है, राइट. सो टू रिप्रेजेंट द ER डायग्राम we visual representation of the data, we need some symbols. So that symbols are mentioned over here कि अगर आप entity या तो strong entity define कर रहे हो, so it is a rectangle. अगर weak entity है तो double rectangle. अगर attribute है so single ellipse. अगर multi valued attribute है तो double ellipse. एंड देन अगर रिलेशनशिप है तो डायमंड एंड अगर वीक रिलेशनशिप
शिप है तो डबल डायमंड। ये इसके अलावा लाइंस एंड प्राइमरी की। लाइंस मीन्स जो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा यहाँ पे, we have seen over here कि जो ये एंटिटी एंड रिलेशनशिप है या तो एंटिटी एंड एट्रीब्यूट है, उसको बीच में यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ किया गया है, राइट। तो लाइन उसके लिए यूज होता है। एंड द प्राइमरी की अगर डिफाइन कर रहे हो तो आपका जो ये एट्रीब्यूट वाला सिंबल है, एट्रीब्यूट वाले सिंबल में आपका जो भी प्राइमरी की होगा, सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ए, कि मैंने ए लिया है यहाँ पे एट्रीब्यूट, ठीक है, तो उसके नीचे अंडरलाइन होगा। अब ये पूरा होगा ऐसे एट्रीब्यूट विद द नेम एंड अंडरलाइन, so that is known as an primary key. Okay, so कुछ फैक्ट है about the ER diagram model. ER diagram model क्या कर रहा है कि हमें डेटाबेस ड्रॉ करने के लिए अलाउ कर रहा है। सेकेंड थिंग कि ये ग्राफिकल टूल है टू रिप्रेजेंट और मॉडल द डेटा। थर्ड थिंग कि आप जब भी डेटाबेस डिजाइनिंग करते हो उस टाइम पे ये वाइडली यूज होता है। फिर जो आपका लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस है उसका अच्छा GUI रिप्रेजेंटेशन करता है आपका ER डायग्राम। एंड if you want to identify the entities which is existent in a system and relationship between those entities, so at that time ER diagram is a very helpful tool जिसका यूज करके हम बहुत सारी जगह पे बेनिफिट ले सकते हैं। लाइक आपके जो एंटिटीज है और उनके जो रिलेशनशिप है उनको आप इजीली डिफाइन कर पाओगे, उसको कैसे यूज करना है वो डिफाइन कर पाओगे। उसके साथ साथ जो आपके टेबल्स है उनको कैसे कनेक्ट करना है, उनको एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ना है वो फोकस कर पाओगे। Then it also helps to describe the entity, attribute and relationship. And अगर कोई ऐसा चीज हुआ कि आपको टेबल से पूरा डेटाबेस बिल्डअप करना है क्विकली, तो उसमें भी आपको ER डायग्राम यूजफुल होगा। एंड अगर आपके पास ER डायग्राम डेटाबेस का ब्लूप्रिंट अवेलेबल होगा, तो आपको जो भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन क्रिएट करना है या वेबसाइट डेवलप करना है उसमें आपको बहुत जल्दी प्रोसेस कर पाओगे और टाइम सेविंग बहुत ज्यादा होगा। So with the help of the ER diagram, it is allowed us to communicate with the logical structure of the database to the users. Now there are three things in ER model that you should be focused on. First one is entity, second one is attribute, and third one is relationship. While we are talking about the entity, so there are two type of the entity. First one is strong entity and second one is weak entity. While you are talking about the attribute, so there are four type of the attribute: key, composite, multi-valued and derived attribute. Okay, and the last one is relationship. So there are four type of the relationship in ER model. First one is one-to-one, one-to-many, many-to-one and many-to-many. So we study about the ER model, key, how these three major things, these three main component, entity, attribute and relationship, वो आपके ER डायग्राम के तीन कंपोनेंट्स है और उन पे फोकस करके हम देखेंगे कि ये तीन चीजें क्या है और उसके बेस पे इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो एंटिटी इज नथिंग बट it is a person or a place or an object or event or concept about which data is to be mentioned. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि कार एंड स्टूडेंट, तो एंटिटी क्या हुआ कि कार एंड स्टूडेंट। अभी जो एंटिटी होगा उसका ही उसी के ऊपर से हम बोल सकते हैं कि उसके एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट मीन्स कि जो एंटिटी है उसकी कुछ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी, राइट। कि कार है सो ब्लू कलर का है, सो दैट इज नोन एज एन एंटिटी। एंड स्टूडेंट है सो उसका नाम जैक है, दैट इज आल्सो नोन एज एन एंटिटी। नाउ रिलेशन की association between instance of one or more type of the entities means कि blue car belongs to the student Jack, so ये हुआ उनके बीच का relation. So this is the about entity, attribute and relationship. अगर entity and attribute को हम define करें relation को in technical terms, so we can say that कि a real world thing either living or non-living that is easily recognizable and non-recognizable, तो उन चीजों को आप एंटिटी में डिफाइन कर सकते हो। एंटिटी कुछ भी हो सकती है, प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट, इवेंट, कंसेप्ट,
जिसको आप अपने डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हो और जिसकी एंटिटीज के एट्रीब्यूट होते हैं और जिनकी एक यूनिक की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं अबाउट द एंटिटीज की पर्सन है तो पर्सन कुड बी एन एम्प्लॉय, स्टूडेंट, पेशेंट। अगर प्लेस है सो स्टोर एंड बिल्डिंग, ऑब्जेक्ट है सो मशीन, प्रोडक्ट एंड कार, इवेंट है तो लाइक सेल्स, रजिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू, कुछ भी हो सकता है। कंसेप्ट है कि अकाउंट है या कोर्स है, सो दैट इज अबाउट द एंटिटी एंड एंटिटी सेट्स कि वो कैसे यूज होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि एक यूनिवर्सिटी है जिसमें स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सो एक स्टूडेंट है वो मल्टीपल क्लासेस में जा सकता है, राइट। सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड क्लास। एंड वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ द रिलेशनशिप कि रिलेशनशिप इज नथिंग बट एन एसोसिएशन अमंग टू और मोर एंटिटीज। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है टॉम वर्क्स इन द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये यहाँ पे रिलेशनशिप शो किया गया है। सो मैं ये बोल सकती हूँ कि टॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, इधर ये भी बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में टॉम वर्क कर रहा है, सो दिस इज द वर्किंग वाइस वर्सा, राइट। And another example is कि you are attending this lecture and I am giving this lecture, that is also a relationship entity, okay? और उसके अलावा और एक relationship entity का example है कि a student attends a lecture and a lecturer is giving the lecture, so this is the example of the relationship. So we'll see further in the next lecture कि इसके जो टाइप्स है, एट्रीब्यूट के जो 4 टाइप्स थे वो क्या है, रिलेशनशिप के जो 4 टाइप्स है वो क्या है, ईआरडी डायग्राम कैसे डेवलप कर सकते हो, उसमें नेटवर्क मॉडलिंग कैसे यूज होता है, एंड ये जो डेटा मॉडल्स है वो आपके डेटाबेस को और कैसे एनहांस कर सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू guys have any doubt you can put your question in below comment box.